Namaskar, Vande Mataram. Julelal Institute of Technology has organized a 1 week faculty development program on the topic Overcoming the Challenges in Adopting Online Technology in Teaching and Learning Process. I would like to congratulate the organizers, the principal, vice principal, and management for organizing the FDP on such a relevant topic. Since March, we had a lockdown due to the COVID-19 pandemic. We are at home, and as you know, in the March, the sessions are on peak. We have to complete our syllabus, complete the practicals, take the continuous assessment activities in the college, organize some of the activities for student development. So, due to this lockdown, we are unable to complete all these activities in person. So, now the responsibilities come to our teachers that we should think of another tool by which we can accomplish our assignments. So, I feel that organizing the faculty development workshop on such a relevant topic is very much needed. I have chosen the topic as Koham, know yourself. This is a basic question and the basic topic because unless and until you know yourself, you cannot move ahead with and think of how I shall be facing these challenges and convert them into the opportunities. I remember one of the shlokas that etad desha prasutasya sakashat dagrajanmana स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः. भारत ने जीवन के हर क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान किया है. भारत ने ही संपूर्ण विश्व को दिशा, दृष्टि और शिक्षा दी है. हमारे भारत के महापुरुषों ने इसी शिक्षा के आधार पर अपने यहाँ गौरवशाली, वैभवशाली भारत की निर्माण किया है. ये बताना इसीलिए ज़रूरी है कि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम किस देश के नागरिक हैं, इसका इतिहास कैसा रहा है, तब तक हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे और हमारी जिम्मेदारियों को भी हम समझ नहीं पाएंगे. भारत की ज्ञान विज्ञान की अनुसंधान की अक्षुण्ण परंपरा रही है, लेकिन बीते 1500 वर्षों के संघर्ष के इतिहास ने अनेक आक्रमण भारत पर हुए. आक्रांता आए, शक आए, हूण आए, मोगल आए, ब्रिटिश आए. इन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया. इसीलिए आज हम कौन थे ये खोजने की फिर से ज़रूरत आ पड़ी है. लेकिन कई सारे ऐसे दस्तावेज आज भी मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना योगदान दिया है, कितनी उन्नत भारत की शिक्षा व्यवस्था रही है. ये सब जब जानेंगे हम तो हमें ज़रूर गौरव महसूस होगा, हमें ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छी बात है. लेकिन केवल गौरव महसूस करने से नहीं होगा. इट इज़ नॉट जस्ट फीलिंग प्राउड ऑफ एनीथिंग विच हैज़ हैपन्ड इन इतिहास, बट इट्स टाइम टू क्रिएट इतिहास ऑल्सो. So naturally the responsibility is on shoulders of coming generation. So we as citizens of India, we need to think of, we need to first of all understand who am I? What are my responsibilities? What are my strengths? How I am going to live this life and achieve the goal of life? Now see, whenever I ask question to my students, what you would like to be in your life? Then students usually say कि I would like to be a doctor or engineer like that. But is it that mere a goal of life or it is beyond that? That has to be understood. Life is beyond what is our career. Life is the ultimate satisfaction for which we have taken the birth. So this satisfaction could be achieved or we can reach to that state of satisfaction unless and until we are able to know who am I. Now, who am I means developing the faculties of our own senses. Our senses are our faculties, like our eyes, what we see, how we see, and how we perceive.
Then eyes, what to hear, what not. Then nose, what to sense, what not. So all these five faculties of senses, they has a great impact on our intellectual development, our experiences, and even on our total impact of life as a whole. So one has to take all efforts to develop these faculties. Mere developing with these faculties will not do. The proper coordination within amongst all our sense faculties has also an impact, और it is also an important. कुछ उदाहरण बताना चाहूँगी. जैसे जिस तरह से हम हैं वैसे हमें दुनिया दिखती है. उदाहरण के तौर पे हम सुबह उठे और उठने के बाद हमारा मन बहुत अच्छा है. आज हमारे साथ सब लोग अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, सब खुशी खुशी है, तो स्वाभाविकतया हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है. और अगर कोई किसी को हम ये पूछे कि आज फिर कौन सा गाना गाओगे तुम, मूड अच्छा है तो हमारे मुख से गाना निकलेगा कि आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, दैट सॉर्ट ऑफ सॉन्ग. तो आज हमारा मूड अच्छा है तो दुनिया हमें अच्छी लग रही है और उड़ने का मन करता है. लेकिन एक आध दिन किसी वजह से किसी से हमारी अनबन हुई या कुछ हमारा मूड ठीक नहीं है, उस वक्त अगर कोई हमें पूछे कि कैसी है लाइफ, हाउ इज़ द लाइफ, तो हमें ऐसा लगेगा हम ये गीत गाएंगे, दया घना का तुटले, हाँ ये वाला जो गीत है वो हम गाएंगे और बोलेंगे उरलो बंदी ऐसा, दया घना का तुटले चिमणे घरटे उरलो बंदी ऐसा. So that is a very sad song, and you will find that the life is like this only. The person who is very stable, जो स्वस्थ है, a person who is upon self, anytime, anywhere, at any instant of moment, if you ask that person, how are you? The answer comes or reflection comes at Anandi. I cannot translate Anandi as happy in English because it cannot be translated. This, the experience of Ananda is something different. And if that person wants to express through any song, then he or she will definitely say, Ananda se dohi, Ananda taranga, Ananda chiyanga, Ananda se. So whenever all these faculties of our senses are in complete balance with each other, and you have a full authority over all these senses, then the outer disturbance cannot have an impact neither on your physique, nor on your mind, nor on your experience, nor on your intellect. So this is what is Koham, know yourself. Now I would like to give one more example. 4 मित्र थे और दुर्भाग्यवश चारों मित्र जो थे वो अंधे थे, और उन्होंने सोचा कि चलो हाथी को देखा जाए, हाथी को महसूस किया जाए. तो चारों हाथी के पास गए. हाथी के पास जाने के बाद एक ने हाथी की सूंड को हाथ लगाया, एक ने हाथी की पैर को हाथ लगाया, एक ने हाथी की कान को हाथ लगाया और एक ने हाथी की पूंछ को हाथ लगाया. सब लोगों ने हाथी को हाथ लगाने के बाद अपना अपना अनुभव उनको मिला, और आने के बाद सभी चारों जन आपस में चर्चा करने लगे कि हाथी कैसा है. तो जिसने हाथी के सूंड को हाथ लगाया था उसका अनुभव उसे ये कह रहा था कि हाथी पाइप जैसा है. जिसने हाथी के पैरों को हाथ लगाया था उसने तुरंत पहले वाले को बोला, गलत कह रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट, हाथी यानी बड़े बड़े खंबे जैसा है. तीसरे ने कहा, क्या बात करते हो, मुझे तो हाथी सूप जैसा है ऐसा लगता है.
soup which is used for winnowing. तो उसने हाथी के कानों को हाथ लगाया था, इसलिए उसको हाथी के कान सूप जैसे लगे और उसने कहा कि नहीं, हाथी तो सूप जैसा है। और चौथा व्यक्ति जो था जिसने हाथी की पूंछ को हाथ लगाया था, उसने कहा कि हाथी जो है वो रस्सी जैसा है, क्योंकि उसने पूंछ को छुआ था जो उसे बहुत पतली और रस्सी जैसे लगी। चारों जन अपनी अपनी जगह बराबर थे। उनका अपना अपना अनुभव जो था वो भी सही था। लेकिन अगर हम समग्र दृष्टि से, when we see with a holistic way actually the elephant, then we realize that all four experiences are true, but it is not complete truth. To have a complete truth, experience of complete truth, it is necessary that you need to have the eyesight, also you need to have a vision. Many a times in the life we see the things in small installments or in small packets, and depending upon those experiences we try to define or experience, or we try to express that the life is like that only. For an example, this particular condition of pandemic, initially for few days we were very worried, very sad, very nervous, because we are having some schedules of life. We wake up, we exercise, then we had our own works, then we move on to either offices or the colleges. We interact with the very positive sort of energy that is our students. We spend the time in learning, teaching. We also learn many things in the college. That is what I feel. So we spend a good time in the college, and then with that experience we had meetings with our faculties, with our colleagues as well. So whole things go around up like that, and then we come back and we had our own schedules. Suddenly, due to lockdown, we had very odd schedules. Initially for 4-5 days we felt like, oh, it's a relaxing time, it is a vacation, these are the holidays. But as the time is getting stretched, we are finding that it's not that easy. Since we are responsible citizens, persons of education system, citizens of this nation, we are continuously thinking of how we are going to complete our assignments, how we are going to accomplish our responsibilities. But we people of Bharat are very great. It's not that because I am a citizen of Bharat, I love Bharat Mata, I am saying that. You also have same sort of opinion about. In all odds, in all sort of challenges, Bharat comes with a solution, and this solution is very unique of its own, but applicable to all universal people as well. For an example, we started thinking of how the classes will move on. Our teachers, our guides, they made their videos, they started interacting on different social media platforms. Some people who are having the hobbies, they started interacting on social media, posting their songs, some playing music, some doing kavitas, some putting PowerPoint presentation. So this is how we started with. We slowly started grooming the students as well as grooming ourselves with the situation. Now, as I earlier said, we need to know our strength, weaknesses. If these two things are known to us, then the forthcoming challenges will try to find out solution and will try to take it as an opportunity to grow. What happens? Many a times we had a long experience of 10 years, 15 years, 20 years of a certain type of work. Then we also have an ego. Nobody like me. I am the best. Nobody can teach me. I know everything.
And this ego sometimes repel us, or it prohibits the windows which are coming as an opportunity to us. So before I think of any opportunity, first of all, let us know what are our strengths. For an example, if I talk of me, then my strengths are, I can go for awareness campaign. I can go for seva karyas, go in society, work for seva, youth for seva, that is my passion. So even in this pandemic, I have taken up that responsibility and had moved to different slums to distribute certain things, distribute masses and other things. Then I love writing, I love reading, so these are my strengths. My weakness is sometimes if I am not able to make up with certain things, I get very nervous. And if I am nervous, then there is a lockdown with me. So that is my weakness. Now JIT college wants me to do the YouTube video. I was not knowing how to do it. I was trying for 2-3 days how I will be making up the video. So I took that challenge. I learned many things online, how to make up a video, how to upload it to you, then how to send the links and other things. And slowly that challenge was converted into an opportunity. All of us are working from home. We are doing FDPs, we are organizing conferences, we are organizing different seminars, webinars are there. So all things which we used to do at office level, we starting doing it from home with the help of the technology that is available with us. So if we are knowing our strength, we are knowing our weaknesses, then with overcoming the weaknesses, boosting our strength and converting the situation of challenges into opportunities, that is also an important part. Now I remember one verse of Samartha Ramdas. He says that रूप लावण्य अभ्यासिता न ये, सहज गुणासी न चाले उपाये, काहीतरी धरावी सोय आगंतुक गुणांची. What happens now? Many a times we run after oasis. We run after Mrugatrishna. You know, God has given us certain things which are very unique for us, and whether we like it or don't like it, I don't know. But few things you cannot change in your life. That is Rupa Lavanya Abhyasita na ye. If you are beautiful, if you are tall, you are handsome, then that is God's gift. You cannot change it. At the most, you can keep yourself very tip-top and like to, you can look smart. But changing entire thing and setup of the body is not a possibility. But Samartha Ramdas says, ki if you want to be, powerful personality, then there are certain things, certain gun, certain qualities that you can acquire from outside. You can practice them, you can do the sadhana, and then your personality can be, developed properly. That is how the Samartha Ramdas ji said. For an example, if I am not able to speak well, then by practice, by hearing to others, looking to others, you can have that particular quality, you can acquire that quality and you can master that quality. So Samartha Ramdas ji always says कि आगंतुक जो गुण हैं, बाहर से जो लिए जा सकते हैं, इंसान ने हमेशा इन गुणों का संपादन करना चाहिए. और ये गुणों का संपादन करना है, अगर मुझे करना है तो मुझे विनम्र होना पड़ेगा. मुझे ये समझना ही पड़ेगा कि कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी है जो मुझे नहीं आती. जब ये समझ पूरे तौर से बैठ जाएगी तो फिर मेरे मन की एक जो खिड़की है कि मुझे नई कुछ चीज़ सीखना है, उसकी ओर मेरा जो ध्यान है वो चला जाएगा. अभी
बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीखते हैं, और धीरे धीरे ऐसी चीज़ें जो सीखी हुई है हमने, हमें ही आती है ऐसा बोल के हमें अहंकार आने लगता है। और फिर कभी कभी हम विवेक जो है हमारा वो भी खत्म हो जाता है, उसका उपयोग हम कैसे करें, होता है ना ऐसे। बहुत बार हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया है, कभी कभी विद्यार्थियों भी किया है, कभी कभी हमने अपने कलीग्स पर भी किया है। इसमें मैं एक कथा आपको बताती हूँ। जैसा मैंने शुरू में कहा था, भारत में शिक्षा व्यवस्था, अनुसंधान, इसके विषय में बहुत चर्चा हुई है। तो भारत में शुरू में शिक्षा जो प्रदान की जाती थी वो गुरुकुल के माध्यम से की जाती थी, और गुरुकुल में कुछ ऐसे 3-4 शिष्य थे जिनको अलग अलग विद्या उनके गुरुओं ने दी थी। तो एक को एक बहुत अच्छा हार्डवेयर इंजीनियर था, तो गुरु ने उसे जो भी बिखराव है उसको समेटकर एक उपयुक्त वस्तु में बनाने का जो कला है, जो क्षमता है, उसको उस शिष्य में गुरु ने डाल दिया। फिर दूसरा एक शिष्य था, तो गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, इसको मैंने असेंबलिंग टेक्नोलॉजी सिखाई है, तुम्हें मैं डिस्प्ले टेक्नोलॉजी सिखाता हूँ। और गुरु द्वारा कुछ मंत्र उसे दिए गए कि जो भी चीज़ तैयार होगी उसको अच्छा डिस्प्लेबल, अच्छा दिखे ऐसा तुम बना सकते हो, ऐसा गुरु ने कहा। अभी तीसरा जो शिष्य था उसने कहा आप मुझे क्या बताएंगे। तो गुरु ने कहा इसको चलाने की बात, इसमें चैतन्य भरने की, इसको सजीव बनाने की जो मंत्र है मैं आपको देता हूँ, इस मंत्र का अध्ययन करो और तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा। चौथा एक शिष्य था गुरु आश्रम में, गुरुकुल में, तो वो सारी चीज़ें देखता था। ये सारी चीज़ें उसको आती तो नहीं थी, लेकिन उसमें विवेक बहुत था, उसमें ये समझ थी कि किस चीज़ का कब और कितनी मात्रा में उपयोग होना चाहिए। इसीलिए वो विवेकशील बना, विवेकपूर्ण बना। शिक्षा प्राप्त हुई और ये बच्चे जो है वो जाने लगे अपने घर को वापस। अभी जैसा हम जानते हैं कि गुरु आश्रम यूजुअली जंगलों में, वनों में होता था, तो घर जाने के लिए रास्ते में उनके जंगल पड़ा, और जंगल पड़ा तो ये ध्यान में आया कि इस जंगल में एक बाघ, टाइगर मरा पड़ा हुआ है। तो और उसकी सारी की सारी हड्डियां जो है बिखरी पड़ी हुई है। तो हड्डियां बिखरी पड़ी हुई थी, तो उसको देखते बराबर पहला जो शिष्य था, जो असेंबली जानता था, उसके मन में जागृत हुई कि चलो गुरु ने मंत्र तो दिया है हमें, क्यों ना इस मंत्र का प्रयोग किया जाए। तो उसने प्रयोग करके पूरे के पूरे बाघ की हड्डियों को एकत्रित किया, एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू अ कंप्लीट स्केलेटन ऑफ अ टाइगर। दूसरे ने कहा मुझे डिस्प्ले आता है, तो मैं इस पर मांस चढ़ाता हूँ, इसके अंदर सारा का सारा और उसकी खाल चढ़ाता हूँ। देन ही सेड अ मंत्र एंड उस पर खाल चढ़ी, उस पर मांस आ गया। तीसरे ने कहा गुरु ने मुझे जीवन देने की या चेतना देने की जो शक्ति दिखाई है उसका प्रयोग हम करेंगे। तो चौथा शिष्य विवेकशील था, उसने कहा भाई बाघ है, इसमें चेतना आ गई तो हो सकता है वो हमें खा जाए, आप प्रयोग ज़रूर करो लेकिन सुविधा को भी तो पालो। तो उसने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, तो आप ऐसा करो कि सब लोग पहले झाड़ पे चढ़ जाओ और फिर हम प्रयोग करेंगे। तो तीनों ने कहा हमें तो झाड़ पे चढ़ना नहीं आता। तो उसने कहा फिर मंत्र का उपयोग मत करो, ये सजीव हो गया तो ये हमको खा जाएगा, हम जीवन से परे हो जाएंगे। फिर भी जब कोई चीज़ आती है और मन ठान लेता है, बुद्धि का नाश हो जाता है, और फिर हम जो नहीं करना है उसको कर भी बैठते हैं, बहुत बार ऐसे होता है। तो वो तीनों ने नहीं माना, उनको झाड़ पर चढ़ना भी नहीं आता था। ये चौथा जो था वो झाड़ पर चढ़ के बैठ गया।
तीसरे ने मंत्र का प्रयोग किया और जोर से गर्जना करते हुए जो बाघ था वो जीवित हो गया। इतने दिनों से भूखा बाघ इसने तीनों को खा दिया। तो बहुत बार विद्या हमें जो प्राप्त हुई है, जो विद्या हमने संपादन की है, क्या वाकई में इस विद्या का उपयोग हमें किस तरह से, किस मात्रा में और कहाँ पर करना चाहिए, इसको सोचना नहीं चाहिए। तो ये सोचने की भी आवश्यकता होती है। जब इस आधार पर हमारा पूरा का पूरा जीवन समझशील, जिसमें समझ होती है उसको हम कहेंगे समझशील, हमारा जीवन समझशील बन जाएगा, सहनशील बन जाएगा, तो सही मात्रा में हमने जो आनंदा से डोही वाला सोचा था कि आनंदा से डोही आनंद तरंग, वो वाली स्थिति धीरे धीरे हमारी आने लगती है। ऐसी स्थिति को लाने का प्रयास शिक्षक ने करना चाहिए। आप बोलेंगे शिक्षक ने क्यों करना चाहिए? तो आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि शिक्षक ये समाज का, राष्ट्र का, किसी भी देश का महत्वपूर्ण घटक है। वो इसीलिए है क्योंकि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। निर्माण और प्रलय उसकी गोद में पलते हैं। तो जिसे निर्माण करना है उसे किस आधार पर हमारे विद्यार्थियों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को कैसे तैयार करना है, उसके लिए मुझे कैसा इक्विप होना है, इनेबलिंग वन सेल्फ विद अ क्वालिटी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्ट, एंड वाई टू यूज दिस टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्ट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। ये अगर भान हमारे मन में सदैव अगर रहता है तो फिर हम अपने गोल से, अपने काम से, अपनी जिम्मेदारियों से विचलित नहीं हो सकते। विषय तो हम पढ़ाएंगे, नई टेक्नोलॉजी को भी हम अपने आप में उसको सीखेंगे। वी विल acquire the knowledge of technology, no doubt about it. We'll overcome the situations, the things will turn around. But this is a time of when the life is getting rebooted. Our lifestyle is getting rebooted and we need to factory reset our whole system, our whole thought process. फैक्ट्री रिसेट करेंगे तो जो भी अनवांटेड चीज़ें थी अभी तक यहाँ भेजे में भरी हुई अब हमारे, वो सारी चली जाएगी। एंड अगेन विद द न्यू ज़ील, पॉजिटिव थॉट्स, एंड having a complete control on what I am, what is my responsibility, and how I am going to fulfill my responsibility so that my nation will progress, my coming generation, they will move ahead, so that the goal of my nation, what is the goal of Bharat? To make the whole universe as one family, to care for whole world. Vasudhaiva Kutumbakam, Sarve Bhavantu Sukhina. So these are the mission, this is a mission of Bharat, and to make this mission fulfill, complete, the core values I need to inculcate in myself is an also important task. Hope in coming days, as we are moving ahead with this lockdown, we have gathered, we have collected many information, we have tried to acquire many good qualities, agantuk good skills in ourselves, and as and when we will move still ahead with the time, we will come up with a very new, different model of teaching learning. One story I'll tell you and then I'll finish my talk. We all remember the Panchatantra stories. I know everybody, whatever may be the age, everybody likes Panchatantra stories. So there was actually how these Panchatantra stories were told and how it came into. So there is a beautiful story that comes in, it goes beyond even Upanishads and Vedas. So it is said that there was one Rashtra, nation, of naming Mahila Ropya. So the king was very upset because he has 3 children and they were not well versed with education. शास्त्र में उनको कोई रुचि नहीं थी। तो राजा बहुत परेशान हो गया था कि ये तो
कुछ शिक्षा विद्या कुछ ले ही नहीं रहे, तो ये कैसे देश चलाएंगे, कैसे राजा बनेंगे, अच्छे राजा कैसे बन पाएंगे. So that was a botheration with the king, and many gurus tried, but they were not responding to anybody, and Raja was getting very depressed, nervous. So finally what he did, उसने अपने राज्य में घोषणा फैलाई और कहा कि जो भी मेरे इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देगा उनको मैं बहुत अच्छा पुरस्कार दूंगा. So there was one Shikshavid, educationist, residing in his country, in his state. So he got that घोषणा. So he thought of कि क्या ऐसी बात है, इतने बड़े बड़े आचार्य गए, उनसे भी ये बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे हैं, क्या बात है. तो हमेशा एजुकेशनिस्ट शुड एक्सपेरिमेंट विद द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स तो हम करते ही है, लेकिन विद द पेडागॉजी ऑल्सो यू नीड टू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग. तो इसने सोचा एक प्रयास किया जाए, और उसने राजा के पास जाकर उसे क्या लगता है उसके बारे में उसने बताया, और उसने कहा कि अगर आप मुझे योग्य समझते हैं तो मुझे ये बच्चे आपके जो है वो दे दीजिए, मैं इन पर देखता हूँ कैसे मैं इनको शस्त्र शास्त्र संपन्न बनाऊँ. राजा थक हार गया था, बहुत सारे अच्छे गुरुओं के पास भी जाकर अगर ये नहीं आए तो अभी जो सामने आया उसको हाँ बोलने के सिवा उनके पास भी कोई पर्याय नहीं था. तो उन्होंने इस विष्णु शर्मा जी के साथ इन बच्चों को भेज दिया. अभी इन विष्णु शर्मा जी ने सबसे पहले बात क्या की होगी, तो इन्होंने सबसे पहले इन बच्चों को खुला छोड़ा और इनका ऑब्जर्वेशन किया. देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण बात है. आते बराबर हम पढ़ाई लेना जो शुरू करते हैं, बोर्ड के समय हम जो जाते हैं 50 घंटा हमारा जो लेक्चर चलता है, हम भूल जाते हैं कि सामने बैठे हुए लोग भी कुछ कहना जानते हैं, कुछ उनके पास भी है, उनके मन में भी कुछ है. तो विष्णु शर्मा जी ने इन बच्चों को खुला छोड़ा और इनका ऑब्जर्वेशन किया. तो उसने एक बात इन बच्चों में पाई कि ये बड़े निष्पाप है, निर्मल है, लेकिन यूजुअल ट्रेडिशनल शिक्षा की जो पद्धति है इससे इनको नहीं सिखाया जा सकता. जंगल था. विष्णु शर्मा जी ने सोचा कि ठीक ऐसा नहीं पढ़ते तो हम कुछ और मेथड यूज़ कर लेते हैं. तो उन्होंने क्या किया, एक एक कहानी बताना प्रारंभ किया, और कहानी भी ऐसी कि जो इर्द गिर्द है, हाँ, जो दिख रहा है, जिसको हम बता सकते हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा के पाठ पढ़ाना शुरू किया. तो हम सब जानते हैं पंचतंत्र में पशु पक्षी है, सब कुछ है. उनके माध्यम से जीवन की शिक्षा, जीवन मूल्यों की शिक्षा देना विष्णु महेश जी ने प्रारंभ किया. और 6-7 महीने के बाद ही बच्चों में जो परिवर्तन आया, जो शिक्षा की लगन उनमें जागृत हुई, वो बता नहीं सकते. इतना अच्छा बाद में उन्होंने अच्छा राज्य संभाला. इन पंचतंत्रों की कहानियाँ पूरे विश्व भर में फैली हुई है. सबसे पहला प्रयोग ये भारत में पंचतंत्र का हुआ है. ये शिक्षा का एक माध्यम बना, कथा बताना, और ये माध्यम हमने आज तक नहीं छोड़ा है. हम जानते हैं कि शुरू में हमारे बहुत बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे. परिवार में 40-50 इतने लोग हुआ करते थे. तो कोई ना कोई कहानी बच्चों को बताता था. धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काम की तलाश में सब लोग इधर उधर होने लगे. तो आज हमारा परिवार जो है वो न्यूक्लियर परिवार होता जा रहा है, रादर हो गया है. तो आज हमारे बच्चों को ऐसे जीवन शिक्षा, जीवन मूल्य देने वाली कोई चीज़ कम हो गई है. तो हमारे टेक्नोक्रेट्स ने क्या सोचा, क्यों न इन कथाओं को एनिमेशन के फॉर्म में बनाया जाए. अगर घर के माँ बाप घर में नहीं है, ऑफिस में है, तो बच्चों को अलग अलग माध्यमों से जीवन की ये शिक्षा दी जाए. और बेट मी, हमारे बच्चे छोटे, अगर हमारे आजू बाजू में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे वो लोग एनिमेटेड स्टोरीज़ देखते हैं. और अगर हम कुछ गलत कर जाए, गलती से गलत कर जाए, वैसे तो हम गलती करेंगे नहीं,
लेकिन गलती से गलत कर जाए, पानी का नल खुला छोड़ दे, तो एक कथा आपको सुननी पड़ेगी पीछे से कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, आप तो बड़े हैं ना, कचरा फेंको इधर उधर तो तुरंत बताएंगे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समय के साथ टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया। जहाँ पहले हम स्वयं कथा बताते थे, आज एनिमेटेड स्टोरी के माध्यम में वही ज्ञान, वही एक अपेक्षा, वही जीवन मूल्य हम अपने बच्चों तक पहुँचा रहे हैं। ऐसे दीर्घ प्रदीर्घ विकास की प्रक्रिया ये चल रही है। एक शिक्षक होने के नाते इस प्रक्रिया में हमारा योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। उस योगदान देने के लिए हमको स्वयं को योग्य बनना पड़ेगा। इस योग्यता की और एक पहल बढ़ाना, यानी स्वयं को जानना, स्वयं को जानो पहचानो। मॉडर्न तो बनना है, लेकिन सारा का सारा वेस्टर्न आने से नहीं चलेगा, कुछ तो भारतीय चीज़ हम में होनी चाहिए। इस अपेक्षा के साथ इस सत्र को यही रोकती हूँ। आपने बहुत पेशेंस के साथ इसको सुना, आप अपने जीवन में ज़रूर इसका विचार करेंगे, आप करते ही होंगे। हम सब मिलकर इसका प्रयोग करेंगे, इसको स्थापित करेंगे, इस आशा के साथ नमस्ते, वंदे मातरम।